हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक है ना? जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि मैं क्यों हूँ, कौन हूँ। तो मेरा नाम है स्वप्ना। फिर एक बार मैं बताती हूँ। तो हम आज से क्या करने वाले हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा भी एक टॉपिक लेके। जैसे कि आज हम टॉपिक डिसाइड किया है जो है कि 12th का। सो 12th का कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो देखो। वो टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक का नेम क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से एलिमेंट फॉर्म करेंगे? जैसे कि पीरियोडिक टेबल हमें पता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से कौन से एलिमेंट ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे? मोस्ट प्रेफर किया जाए तो जैसे कि मेटल्स फॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। अब मेटल्स बोले तो ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 में भी आते हैं मेटल्स, डी ब्लॉक में भी आते हैं मेटल्स, एफ ब्लॉक में भी आते हैं मेटल्स, पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स है, मेटोलाइट्स है, नॉन मेटल्स है। तो उसमें से एग्जैक्टली कौन कौन अगर हम वैसे देखा जाए तो डी ब्लॉक उनका प्रेफरेंस रहता है कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करें। अब हम इसमें देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मीन्स व्हाट। अगर हम डेफिनेशन डिसाइड करें कि व्हाट इज मीन बाय दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जैक्टली, सो इन दैट फर्स्टली वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज this is the topic name, so we should know what we are going to study exactly. So coordination compound is nothing but the compounds in which metal atom or ion is surrounded by, means it forms the bonds with the different molecules or the ions. Okay, so what is the exact definition? Listen carefully. The compounds in which central metal atom or ion is surrounded by electron donating molecules. What is the word? Electron donating molecules or the ions. Okay, that is nothing but the coordination compounds. So what was my point? Listen carefully. Coordination compound is nothing but the compounds in which central metal atom or ion is surrounded by the electron donating molecules or the ions. Clear to everyone? So here we have completed the definition which is of the coordination compound. जैसे कि अगर हम देखते हैं, जैसे कि CH4 हम बोलते हैं कि इसमें जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्म किया है, दैट बॉन्ड इज द कोवैलेंट बॉन्ड बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन देम. So if we consider, as we know that there are different types of bonds, so here it is a covalent bond. Second one, NaCl. This bond is formed by the loss or gain of electron. So this is an example of the ionic bond in between them. This is a ionic compound. So third one we are going to start, that is the coordinate compound. In that coordinate compounds, coordinate bond is present. Which bond is there? Coordinate bond is there. Now how that coordinate bond formation will take place, that I will tell you. Now see, if we consider coordinate bond, in that also listen carefully by words, sharing of electrons takes place. What is that? Sharing of pair of electrons takes place. But difference is that if we you will say that ma'am, if sharing of pair of electron is there, then that will be covalent bond. But no, here that sharing of electron, जैसे कि देखो एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे एटम की तरफ से एक इलेक्ट्रॉन होता है. जब ये शेयरिंग होता है तो ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड. बट इफ वी कंसीडर दैट मेटल, here we will write here L, okay, that electron donating molecule. Why I am writing L, that I will tell you, but listen carefully. This is the metal and this is the electron donating molecule or the ion. When that bond formation takes place in that metal and electron donating ion or molecule, at that time 2 electrons are used, but these both electrons are shared only by the ligand. किसकी तरफ से होते हैं ये लिगन? ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लिगन की तरफ से. सो इसलिए व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली थ्रू लिगेंड, that is nothing but the electron donating
molecules or ions. That type of bond is called as a coordinate bond. जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड हम डिनोट करते हैं by the dotted line. Here also coordinate bond is denoted by double headed arrow. That headed side means double headed side is towards the metal because ligand means electron donating atom is giving the electron. Okay, जैसे कि देखो अभी हमारा क्लास चल रहा है, मैं यहाँ पे हूँ और आप बहुत सारे मतलब जैसे कि हम कंसिडर करेंगे 20 स्टूडेंट्स आर देयर. ओके, सो दिस 20 स्टूडेंट्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स आर देयर एंड मैं हूं कि आपकी तरफ से वो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाली हूं. तो मैं कौन हो गई? मेटल हो गई, मेटल आयन और मेटल एटम, और आप सब हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस, मतलब आप सब हो गए लिगेंड्स. मतलब यहां से आपकी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेरी तरफ, इसलिए ये डबल हेडेड साइड किसकी तरफ है? तो मेटल की तरफ है. होप सो आपको ये सब दोनों भी चीजें पता चली होगी. कौन सी? फर्स्ट थिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस व्हाट. सेकंड थिंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड में जाता है कोवैलेंट बॉन्ड कि वो जैसे कैसे फॉर्म होता है. आयोनिक बॉन्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है. और थर्ड थिंग दैट इज द coordinate bond. That coordinate bond is nothing but the bond which is formed by the sharing a pair of electron only by the ligands and not by the metal, which is shown by the double headed arrow. और एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो है कौन से इलेमेंट प्रेफर करेंगे टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो अगर आपको ऑप्शन आता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, देन योर आंसर शुड बी D block elements. Okay, clear to everyone? So here we are going to complete the introductory part related coordinate compound. Okay, so now we will discuss the next point. जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि sharing a pair of electron donating atoms होते हैं. अभी electron donating ligand बोलते हैं हम, तो उसका डेफिनेशन और वो सब हम पार्ट अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अभी हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं? लिगेंड. So firstly I will tell you what is mean by that ligand, as well as we will discuss the types of ligand. So what is mean by that ligand? Listen carefully. अगर ये ligand देखें तो क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल्स और आयंस are called as a ligand. Clear to everyone? What was my word? Ligand is nothing but electron donating molecules or the ions. अब इसके types है. Ligands are divided into two types. Which are these two types? See here. Ligand. Okay. So these ligands are mainly divided into two parts. That is the monodentate ligand and second one is that polydentate ligand. अब ये पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है ना, मोनोडेंटेट और पॉली डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूंगी, पर ये पॉलीडेंटेट लिगेंड जो है ना बाद में फिर से डिवाइड होता है, जैसे कि बाइडेंटेट लिगेंड, जैसे कि ट्राइडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड. सो ये सब क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड. सो अगर हम देखें डेफिनेशन लिगेंड की तो हो गई. अब सेकेंड टाइप क्या आता है हमारा? टाइप्स ऑफ लिगेंड्स. अगर टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखा जाए तो उसमें क्या होता है, देखो जैसे कि हमारा क्लास मैंने बोला कि जैसे कि मैं मेटल आयन हूं, आप सब क्या हो? लिगेंड्स हो. ठीक है, तो अगर आप सब में से जैसे कि हमारा 20 स्टूडेंट्स हमने बोला क्लास में है, 20 स्टूडेंट्स में से अगर एक ही टॉप आता है, मतलब हम क्या बोलेंगे? हाँ, एक ही टॉपर है. वैसे ही अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं H2O, NH3, these are the molecules. Okay, after that if we consider that fluoride, chloride, bromide, iodide, cyanide, okay, these are the different ions. These are the ions and these are the molecules. So if we consider that NH3 or H2O molecule, as we know that in that NH3, okay, if we consider its structure, that is the HHH.
it carries one lone pair. That lone pair will be donated by the nitrogen. So in this way we can say that nitrogen is a electron donating atom in that amine. Clear to you? So only one, see, अगर मैंने बोला आपको कि नाइट्रोजन सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब हाइड्रोजन करता है क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो यूज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहता। सो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स इन दैट NH3 1 नाइट्रोजन इज देयर, 3 hydrogens are there, then and then also only nitrogen, only one atom is electron donating atom. Means NH3, this is an example of monodentate ligand. H2O, अभी ये बाकी में एक एक है, वो आपको इजी जाएगा, पर ये मोनोवैलेंट क्यों है, मोनोडेंटेट क्यों है, मुझे बताना है। H2O, इसमें क्या है? एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, मतलब एक ऑक्सीजन जिसपे लोन पेयर्स होते हैं वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। पर 2 हाइड्रोजन जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, क्योंकि एक था वो बेचारे ने ऑलरेडी शेयर कर लिया है, ठीक है। सो इसके हिसाब से H2O में सिर्फ ऑक्सीजन इज ओनली वन एटम विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोडेंटेट लिगेंड। होप सो आपको पता चला होगा कि मेरे आज के वीडियोस में क्या क्या पॉइंट्स आए, ठीक है। देखो फिर एक बार रिवाइज करती हूँ। फर्स्टली हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया, ये तो आपको पता चला होगा कौन सा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स दिस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सो विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दैट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स? इन दैट coordinate bond is present, which is formed by the sharing a pair of electron by the ligands only, that is the coordinate bond. Coordinate compounds are nothing but the compounds in which metal ion is surrounded by the ligands. Okay, that is the simple thing. After that we have seen that ligands, this definition as well as the examples. Now just I am giving the idea what is mean by what are the different types of the ligand. In the next video we will discuss why we are calling them as a monodentate, what are the examples of the polydentate, and third one, that is an important ligand, because for the subjective purpose there will be the question on that point, but that I will tell you in the next video. Okay, so what is the point? Types of ligand is last point. In that we have seen that monodentate ligand, and second type is a polydentate ligand, which is again divided into bidentate, tridentate और hexadentate also. So hope so आपको ये मेरा जो कुछ भी पार्ट मैंने आपको टीच किया वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पहले से एंड तक देखो, क्योंकि आप सब ये वीडियो अभी के पीरियड में देख रहे हो, जबकि आपको बहुत जरूरी है ईच एंड एवरी टर्म मालूम होना, ठीक है। सो अभी आप ये कंटिन्यू करना है विदाउट स्टॉप और विदाउट मिस वो दौड़ते दौड़े नहीं देखना है, जैसे कि कंटिन्यूअसली देखना है। कुछ चीजें आपको लगता है कि हाँ नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कीजिए प्लीज, क्योंकि अभी का ही टाइम है जबकि आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सो आपको वीडियो कैसा लगा वो आपको लाइक करना है। अगर पसंद आया हो तो मैं पहले ही नहीं बोलूंगी कि आपको लाइक करना है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो। कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दे सकते हो आप, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।